Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for love and support. Students, continue करते with Maharashtra State Board 10th Standard Maths Part 2 Chapter number 6 Trigonometry. So today we'll start with our first part of trigonometry. So before we start with trigonometry, सबसे पहले हम समझ लेते हैं the definition of trigonometry. So students, trigonometry, the word trigonometry is made up of three words: tri, gono and metry. Tri means three, gono means sides and metry means measurement. So the chapter trigonometry deals with three sides measurement of a figure. So जब हम three sides की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा geometrical figure आता है? And that is a triangle. So trigonometry deals with triangle. अब कौन सा triangle? We have total 6 different types of triangles, 3 on based of sides and 3 based on angles. So trigonometry deals with a triangle whose one angle is 90 degree. So let us consider a triangle whose one angle is 90 degree. So I have taken one triangle, say triangle ABC, whose एक angle 90 degree है, angle B हमारा 90 degree है. So A, B and C, क्योंकि इसका एक angle 90 degree है, so I have taken angle B as 90 degree. अब three sides की हम बात करेंगे. So let us name the three sides of this triangle. जो एंगल 90 के सामने है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस. नाउ द रिमेनिंग टू साइड्स आर रिलेटिव. उनका जो नेम है वो डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कहां लाई करता है. सो सपोज इफ माय एंगल दैट इज थीटा, मेरा एंगल यहां पे है, एट एंगल सी मेरा एंगल थीटा है. सो एंगल ए बी सी, द साइड विच इज ओपोजिट टू थीटा इज नोन एज ओपोजिट साइड. सो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर यहां पे मेरा थीटा है. जो साइड थीटा के सामने है इसके ओपोजिट में है, ये है मेरी ओपोजिट साइड. एंड सेकेंड, दिस साइड विच इज एडजेसेंट, जो बाजू में है. थीटा के बाजू में दो साइड्स है, एक है मेरी साइड AC एंड एक है साइड मेरी BC. बट AC मेरा हाइपोटेन्यूज है एंड देयरफॉर BC इज माय एडजेसेंट साइड. सो दिस आर द थ्री नेम्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC. नाउ सपोज अगर मेरा थीटा चेंज हो जाता है, इफ माय एंगल इज से हियर एट एंगल A, तो क्या नेम होगा? सपोज ये मेरा एंगल है एंड इट इज से अल्फा एट एंगल A. सो इफ आई सी फ्रॉम देयर, अगर वहां से देखेंगे तो उस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा हो गया? इसका ऑपोजिट साइड है ये. सो दिस विल बी आवर ऑपोजिट साइड. एंड उसका एडजेसेंट साइड कौन सा है? अल्फा का एडजेसेंट साइड कौन सा है? सो AB एंड AC एडजेसेंट बाजू में, बट AC तो हो नहीं सकता बिकॉज वो तो हाइपोटेन्यूज है एंड देयरफॉर AB इज माय एडजेसेंट साइड. सो दिस इज माय एडजेसेंट साइड. So these are the three sides of this particular triangle. Now let us take the ratio of the three sides. So which are the three different ratios which are possible? Total 6 possible है, but हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 3 है, so हम 3 कंसिडर करते हैं. So कौन से 3 पॉसिबल है? So सबसे पहला पॉसिबल है वो है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. जो सेकंड पॉसिबल है वो है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. डिफरेंट कौन से रेशियोज पॉसिबल है वो हम ले रहे हैं. द थर्ड वन इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. Now the first one, opposite side upon hypotenuse is known as sin theta. ये सब हमने 9th standard में किया था. Adjacent side upon hypotenuse is known as cos theta and opposite side upon adjacent side is known as tan theta. So these are the three ratios. क्या है हमारे trigonometric ratios है. Total 6 है, but हमारी practice set 6.1 is based on these 3 ratios. And there are few relations between trigonometric ratios. ये हमारे trigonometric ratios है. So कौन से relations है which will be using in our practice set 6.1. So हमारा first relation है sin theta is 1 upon cosec theta, cos theta is 1 upon sec theta, tan theta is 1 upon cot theta, cosec theta is 1 upon sin theta. See, cross multiply cosec sin. So cosec is 1 upon sin, sec is 1 upon cos and cot is 1 upon tan. So these are the 6 trigonometric ratios. Sin theta is 1 upon cosec theta. You can revise, you practice, you will easily get. Next, 2 more we have. Tan theta equal to sin theta upon cos theta, and the last one is cot theta is cos theta upon sin theta. So based on these formulas, we will start with our practice set 6.1. Start करते with our first practice set 6.1 of trigonometry. So this is our first part. And the part 1 is trigonometric ratios. Which are those 3 trigonometric ratios? The first one is sin square theta plus cos square theta equal to 1.
1 plus tan square theta equal to sec square theta and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. So in this particular part we will complete the sums, first 5 sums which are based on trigonometric ratios and the relation between trigonometric ratios. So start karte hain. So the first question is, if sin theta equal to 7 upon 25 then find the values of cos theta and tan theta. So हमें sin theta का वैल्यू दिया हुआ है और हमें पूछा है cos theta और tan theta का वैल्यू फाइंड करो. So we'll start to find with the first one, that is our cos theta. हमें cos फाइंड करना है और हमें दिया क्या है, sin theta 7 upon 25. Now sin दिया है, cos फाइंड करना है, sin दिया है, cos फाइंड करना है. sin and cos में कौन सा रिलेशन है? Out of the three trigonometric ratios, sin square theta plus cos square theta equal to 1 and 1 plus tan square theta equal to sec square theta and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, कौन सा हम यूज करेंगे? द फर्स्ट वन, sin square theta plus cos square theta equal to 1. Why? Because हमें sin दिया है and cos फाइंड करना है and we can use that. So we'll start with that. So sin square theta plus cos square theta equal to 1. We'll substitute sin. What is sin theta? It is 7 upon 25. So 7 upon 25 the whole square plus cos square theta equal to 1. We'll solve further. So brackets को open करेंगे. 7 will become 49 upon 25 square will be 625 plus cos square theta equal to 1. Cos theta हमें find करना है, cos theta find करना है. So we'll transfer on RHS. So this will become cos square theta equal to 1 minus 49 upon 625. We'll simplify this. Number fractions में है, so I will simplify 625 to 1. This will become 625 minus 49 upon 625. Okay, butterfly apply करेंगे. This will be multiplied with this. The denominator of 1 will be multiplied by 49 and denominator of 1, that is 1, उनको हम आपस में multiply कर देंगे. So 625 into 1 is 625, 49 into 1 is 49 upon 625 into 1 is 625. Now 625 minus 49 will do. So what is 625 minus 49? 9, 10, this will be 6, 11, 6 plus 7 and 576 upon 625. So the value of cos square theta is 576 upon 625. So cos square theta equal to 576 upon 625. हमें cos theta फाइंड करना है. This is our cos square theta. So therefore cos theta equal to square root of 576 upon 625. This will be taking square root on both sides. 576 square root of 576 is 24 and 625 is 25. So the value of cos theta is 24 upon 25. So I hope it's clear. So students, continue करते with our second question. Our second question is find tan theta. Now अभी आपके पास कौन से वैल्यूज है? आपके पास sin theta का वैल्यू है, आपके पास cos theta का वैल्यू है. अभी आपको tan theta का वैल्यू फाइंड करना है. क्या इनके आपस में कोई रिलेशन है? क्या sin, cos एंड tan के आपस में कोई रिलेशन है? एंड द आंसर इज yes. उनके आपस में रिलेशन है. tan theta is sin theta upon cos theta. We will use that. So tan theta equal to sin theta upon cos theta. So do we have the value of sin and cos? Yes. The value of sin theta is 7 upon 25. यहाँ पे जो sin theta का वैल्यू है एंड cos theta का वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है. सो ये आपके लिए थोड़ा न्यू है. सी हाउ वी विल सिंप्लीफाई. sin theta डिवाइड बाय cos theta डिवाइड बाय cos theta. व्हाट इज cos theta? इट इज 24 upon 25. सी थोड़ा अलग पैटर्न से लिखा हुआ है. सो विल सॉल्व इट. दिस विल बिकम 7 upon 25 डिवाइड, वाइल सिंप्लीफिकेशन इज डिवाइड को हम मल्टीप्लाई की साइन डाल देंगे एंड जो नेक्स्ट टर्म है उसका इनवर्स ले लेंगे. अगर 24 upon 25 है तो हो जाएगा 25 upon 24. Now we'll solve this. We'll get reduced. So हमारा आंसर है 7 upon 24. So the value of tan theta is 7 upon 24. So I hope it's clear. So continue करते with our second question. Practice set 6.1 second question. The question is, if tan theta is 3 upon 4, then find the value of sec theta and cos theta. So हमें यहाँ पे tan theta का वैल्यू दिया हुआ है और हमें पूछा है find the value of sec and cos. बहुत ही सिंपल है.
सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वैल्यू सेक थीटा का। सो हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है एंड हमें सेक फाइंड करना है। tan दिया है, सेक फाइंड करना है। क्या tan और सेक में कोई रिलेशन है? यस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वी कैन यूज दिस रिलेशन बिकॉज tan दिया है, सेक फाइंड करना है। सो एक दिया है, एक फाइंड करना है और इसमें एक ही अननोन है। सो वी कैन यूज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट इज 1 plus tan square theta equal to sec square theta and we'll try to find the values of sec theta. So start करते हैं। So equal to sec square theta substitute करते हैं। 1 plus tan theta it is 3 upon 4 the whole square। हमारे पास tan theta का वैल्यू है। So this is tan square theta। So tan theta is 3 upon 4, उसका होल स्क्वायर डाल देंगे equal to sec square theta। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम 1 plus 3 upon 4 the whole square है। सो लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे। लॉज ऑफ इंडाइसेस a upon b the whole raised to m। So a raised to m upon b raised to m। So this will become 3 square 9 and 4 square 16 equal to sec square theta। Now 1 plus 9 upon 16। So there are two different ways in which you can solve this particular question। जब नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर हमें सेम करना होता है। सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दो मेथड है। एक है हमारा बटरफ्लाई एंड सेकंड वन इज एलसीएम। कब बटरफ्लाई करना है, कब एलसीएम करना है, अभी के लिए हम बटरफ्लाई करते हैं। सो हाउ दिस 16 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एंड ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 16 1 जा 16 देन प्लस द डिनोमिनेटर ऑफ 1 इज 1। सो 1 into 9 9 द होल अपॉन 16 1 जा 16 equal to sec square theta। So 16 plus 9 upon 16 is sec square theta। So 16 plus 9 is 25। So 25 upon 16 equal to sec square theta। So finally sec theta equal to square root of 25 upon 16 taking square root on both sides। So the square root of 25 is and 16 is 4। So finally sec theta का वैल्यू मिल गया 5 upon 4। tan दिया था, sec फाइंड करना था, हमने आइडेंटिटी 1 plus tan square theta equal to sec square theta यूज किए। नाउ द लास्ट वन क्या फाइंड करना है हमें? cos theta। हमारे पास tan theta का वैल्यू है, हमारे पास sec theta का वैल्यू है और हमें फाइंड करना है cos theta। क्या इनके आपस में ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर किसी दो के आपस में कोई रिलेशन है? टोटल हमारे पास एक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपको कॉस फाइंड करना है तो आप यूज कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट आपके पास साइन का वैल्यू नहीं है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उसमें तो कॉस होता नहीं है एंड लास्ट वन वाले में भी कॉस नहीं है। सो और कौन से फॉर्मूलाज है आपके पास? कोई रिलेशन है आपके पास? यस, हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में किया। हमारे पास एक रिलेशन है दैट cos थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा। अगर आपको cos फाइंड करना है सो यू कैन यूज द फॉर्मूला 1 अपॉन sec थीटा। cos और sec में वो रिलेशन है। क्या आपके पास sec थीटा का वैल्यू है? यस, एंड वी कैन यूज दैट फॉर्मूला कि cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। क्योंकि नंबर फ्रैक्शंस में है सो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 डिवाइड बाय, जब नंबर फ्रैक्शंस में है तो ऐसे सॉल्व करते हैं। sec थीटा, व्हाट इज sec थीटा? 5 अपॉन 4। सो फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 1 डिवाइड को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। प्रीवियस सम में भी हमने कैसे किया था, डिवाइड को कर दिया मल्टीप्लाई और जो नेक्स्ट टर्म होता है उसके बाद जो टर्म होता है उसका इनवर्स हम ले लेंगे। सो दिस विल बिकम 4 अपॉन 5 एंड फाइनली 4 अपॉन 5। सो आई होप इट्स क्लियर। कंटिन्यू करते विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन is if cot theta equal to 40 upon 9 then find the values of cosec theta and sin theta। so बहुत ही सिंपल सम्स है। हमने गिवन देखा क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है। गिवन को देख के एंड टू फाइंड को देख के हमने उनके आपस में रिलेशन देखा कि आउट ऑफ द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा रिलेशन उनके साथ मैच हो रहा है जिसमें एक ही अननोन हो, जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। सो 1 बाय 1 हमने कंप्लीट किए। फ्रॉम सिंपल सम्स टू डिफिकल्ट सम्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर cot थीटा 40 अपॉन 9 है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। सो स्टार्ट करते हैं कि cot थीटा दिया हुआ है, कोसेक फाइंड करना है। cot दिया हुआ है, कोसेक फाइंड करना है। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? यस, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हम यूज करेंगे बिकॉज एक दिया हुआ है, एक फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं विद दैट रिलेशन।
So 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Let us substitute 1 plus cot theta का वैल्यू है 40/9 इक्वल टू cosec square theta. सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, दिस विल बिकम 1, 40 स्क्वायर विल बिकम 1600/81 इक्वल टू cosec square theta. बटरफ्लाई अप्लाई करेंगे, 81 into 1 81, 1600 into 1 1600/81 into 1, डिनोमिनेटर ऑफ 1 का डिनोमिनेटर 1 है, 1 into 81 81 इक्वल टू cosec square theta. Now 81 plus 1600, it will become cosec square theta equal to 1681/81. cosec square theta वैल्यू मिला है, हमें cosec theta फाइंड करना है. सो स्क्वायर को हटाएंगे, अगर स्क्वायर इक्वल के उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. सो दिस विल बिकम cosec theta इक्वल टू 1681/81 taking square root on both sides. Now 1681 का स्क्वायर रूट, 1681 का स्क्वायर रूट हमारा 41 है. ओके, सो हाउ टू फाइंड? सो यू कैन फाइंड बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स, एंड वन मोर मेथड है, दैट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर बाय डिवीजन मेथड. सो 41 का स्क्वायर रूट, सो 41 इज अवर प्राइम नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना अगर फैक्टर से भी अगर आप ट्राई करोगे सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो कैसे फाइंड करेंगे? सो हमारा जो नंबर होता है एक्चुअली 40 and 9 है, एंड 1600, 40 का स्क्वायर रूट 1600 है, एंड नेक्स्ट नंबर इज 1681. सो ये 40 के बाद ही होगा, 40 के बाद. सो यू कैन चेक 41, 42, 43 कोई एक हो जाएगा, यू कैन चेक. एंड इफ अगर वैसे नहीं करना है तो आप परफेक्ट फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. सो यू कैन यूज दैट डिवीजन मेथड. आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1681. सो हियर इन दिस केस द स्क्वायर रूट ऑफ 1681 इज 41. सो 41/9 इज द वैल्यूज ऑफ cosec theta. I hope it's clear. Now next is sin theta. sin theta फाइंड करना है. सो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक है, sin square theta plus cos square theta equal to 1, बट हमारे पास cos का वैल्यू नहीं है, इसके लिए हम वो आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे. क्या और कोई रिलेशन है? क्या sin एंड cot में कोई रिलेशन है? आप बोलोगे यस, cot theta equal to cos upon sin, बट हमारे पास cos का वैल्यू नहीं है, एंड देयरफॉर हमारे पास एक रिलेशन है जो cosec और sin के बीच में है. cosec theta is 1/sin theta. So we will use that relation. cosec theta is 1/sin theta. So I can write sin theta is 1/cosec theta. Sin theta is 1/cosec theta. Because the numbers are in fraction. So कैसे लिखेंगे? 1 divided by 41/9. This will become 1 multiplied by 41/9 है तो हो जाएगा 9/41. And therefore the values of sin theta is 9/40. I hope it's clear. Continue करते with the last question. So before that, how to find the square root of 1681 by division method हम देख लेते हैं. So 1681 लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने किया था. क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ टूज बनाएंगे, दो के ग्रुप बनाएंगे. सो याद है ऐसे हम करते थे. नाउ विल स्टार्ट विथ 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 4 square is 16, 5 square is 25. We want 16, 25 बड़ा हो जाएगा, so we'll take 4, 16 minus this will become 0. We'll write here plus 4. whichever नंबर जिसके भी स्क्वायर से जाता है उसको 3 टाइम्स लिखेंगे. 1 here, second time here, and third time here. So 4 plus 4, this will become 8, and this will become 0. Now 81 will come down. Now here we have 8. Now in rough work how we'll solve? We'll write 8, then we'll check 1 into 1, and that is 81. Yes, we got that. अगर नहीं आता तो नेक्स्ट नंबर लेते थे 8, 2 into 2, so this becomes 2 to the 4 and 8 to the 16. अगर नहीं आता तो, but here I am getting, so 1, so 1 is 81, and this becomes 0, and we'll write
3 टाइम्स लिखेंगे 1 1 1 and 1, so this becomes 82, so answer is 41. Okay, so this is how we find the square root of a particular number by division method. Continue करते with our next question, that is practice set 6.1, question number 4th. If 5 sec theta minus 12 cos sec theta equal to 0, then find the values of sec theta, cos theta and sin theta. So start करते हैं वन बाय वन. सो बहुत ही सिंपल सम्स है. क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, उनके आपस में रिलेशन कौन सा है, उसके बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है एंड सिंपली यू विल गेट द आंसर. और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैच नहीं हो रहा है तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करना है. सो टोटल ये 3 फॉर्मूलाज और वो 6 फॉर्मूलाज, 6 + 3 9 फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमारी प्रैक्टिस सेट 6.1 है. सो स्टार्ट करते हैं आगे. इफ 5 sec theta minus 12 cos sec theta equal to 0, सो फर्स्ट हमें फाइंड करना है sec theta. सो अगर आप प्रीवियस 3 सम्स कंपेयर करोगे सो हमें वहां पे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था, या तो साइन देते थे, या तो कॉस देते थे, या तो tan देते थे. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है. वो इक्वेशन है 5 sec theta minus 12 cos sec theta equal to 0. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रेशियो दिया होता तो इजीली हम कर सकते हैं बाय एनी ऑफ वन आइडेंटिटी, बट यहाँ पे तो इक्वेशन दिया हुआ है. सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो 5 sec theta minus 12 cos sec theta equal to 0 है, so it can be written as, स्टार्ट करेंगे, this will be 5 sec theta minus 12 cos sec theta equal to 0 है. नाउ अगर मैं 12 cos sec theta को RHS में ट्रांसफर कर दूं, ये हो जाएगा 5 sec theta equal to 0 plus 12 cos sec theta, and therefore 5 sec theta equal to 12 cos sec theta. अभी भी नहीं हुआ, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है. अभी भी नहीं हुआ, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं. दिस विल बिकम sec theta अपॉन cosec theta इक्वल टू 12/5. sec theta अपॉन cosec theta इक्वल टू 12/5. अभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, sec एंड cosec. हमें किसी एक में कन्वर्ट करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. sec theta, इसको स्प्लिट कर देता हूं. दिस कैन बी रिटन एज sec theta into 1/cosec theta equal to 12/5. Now sec theta can be written as 1/cos theta, so this can be written as 1/cos theta, and 1/cosec theta can be written as sin theta. So ये हो जाएगा हमारा sin theta equal to 12/5. So therefore sin theta upon cos theta equal to 12/5. sin upon cos 12/5. अभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. यहां पे भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था 1 and 2. यहां पे भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, अभी भी दो है. हमें सिंगल में कन्वर्ट करना है. नाउ व्हाट इज sin upon cos? tan theta. So this can be written as tan theta equal to 12/5. एंड फाइनली हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, and that is tan theta is 12/5. okay, अब ये हमारा सम प्रीवियस 3 सम्स की तरह हो गया. सो यूजिंग दिस यू कैन इजीली फाइंड sec, cos और sin. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट tan दिया है, tan दिया है, sec फाइंड करना है. tan दिया है, sec फाइंड करना है. tan दिया है, sec फाइंड करना है. tan और sec में कोई रिलेशन है? यस. 1 plus tan square theta equal to sec square theta. सो यूज करेंगे 1 plus tan square theta equal to sec square theta. So 1 plus 12/5 the whole square equal to sec square theta. ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144/25 इक्वल टू sec square theta. बटरफ्लाई अप्लाई करेंगे 25 into 1 25, 144 into 1 144, एंड डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 25 into 1 25 इक्वल टू sec square theta. This will become sec square theta equal to 25 plus 144. This will become 169/25. So sec theta equal to 169/25. We'll write the reason taking square root on both the sides. So 169 is 13/5. So you got the value of sec theta is 13/5.
वेरी सिंपल, सेक थीटा मिल गया। क्या फाइंड करना है? कॉस थीटा। क्या सेक और कॉस में कोई रिलेशन है? यस, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस फॉर्मूलाज। अगर आपको ये 3 आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज और 6 रिलेशन के फॉर्मूलाज एट द टिप ऑफ योर टंग है, सो आपको फटाफट सब सॉल्यूशंस मिलेगा। सो cos थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा। सो 1 डिवाइड बाय 13 अपॉन 5। क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा डिवीजन किया? बिकॉज द वैल्यूज वर इन रेशियोज, रेशियो में वैल्यूज थे। सो ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 13 एंड देयरफॉर cos थीटा इज 5 अपॉन 13। आई होप इट्स क्लियर। एंड द लास्ट वन, साइन थीटा। साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे? क्या हमारे पास क्या साइन और कॉस में कोई रिलेशन है? आप बोलोगे यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप यूज कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर। क्या साइन और सेक में कोई रिलेशन है? नहीं। क्या साइन और हमारे पास टेन भी था, क्या साइन और टेन में कोई रिलेशन है? नहीं। बट क्या साइन कॉस एंड टेन में कोई रिलेशन है? यस, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू आप दो फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। एक है हमारा फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो मैं यूज करूंगा, या फिर दूसरा मेथड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी यूज करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। सो जो फर्स्ट मेथड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं एंड देयरफॉर आई विल यूज द सेकंड वन, दैट इज tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमें sin थीटा फाइंड करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इक्वल टू sin theta. Let us substitute the values. Tan theta, the value of tan theta is 12 upon 5, the value of cos theta is 5 upon 13 equal to sin theta. Simplify करेंगे, this will be reduced and therefore sin theta is 12 upon 13. I hope it's clear. थोड़ा लेंदी था but it was based on our previous three sums. So continue करते with our last question. Continue करते with our last question. And that is, if tan theta equal to 1, then find the values of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta. So tan theta हमें दिया हुआ है और हमें ये ratios फाइंड करना है। So previous कंपेयर टू अवर प्रीवियस सम्स ये काफी डिफरेंट है एंड लेंदी है, सो अच्छे से देखना। सो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको इस रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है, साइन कॉस अपॉन सेक प्लस कोसेक, सो सबसे पहले आपके पास साइन थीटा का वैल्यू होना चाहिए, देन कॉस थीटा का वैल्यू होना चाहिए और वो दोनों को वैल्यूज को ऐड करना है। देन सेक का वैल्यू होना चाहिए, कोसेक का वैल्यू होना चाहिए और उन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। देन दोनों वैल्यूज के रेशियोज को डिवाइड कर देना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन मिलाते, साइन कॉस सेक या कोसेक। साइन, नाउ टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू 1। क्या 10 से आप साइन ला सकते हो? क्या आपके पास ऐसा कोई रिलेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बाय विच थ्रू 10 यू कैन फाइंड साइन? एंड द आंसर इज नो। अगर आप 1 प्लस टेन स्क्वायर यूज करोगे तो आपको सेक का वैल्यू मिलेगा, अगर आप रिलेशन यूज करोगे तो टेन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए। और द थर्ड और एक रिलेशन है, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उससे भी आपको साइन नहीं मिलेगा बिकॉज कॉस नहीं मालूम है। सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना। सो पॉसिबल नहीं है। सो कैसे फाइंड करेंगे? तो साइन अभी नहीं फाइंड करते, सबसे पहले कॉस फाइंड करते हैं। क्या 10 से कॉस मिल सकता है? क्या 10 और कॉस में कोई रिलेशन है? सो आंसर इज नो। सेम रीजन फॉर साइन ऑल्सो। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेक। क्या 10 से सेक मिल सकता है? यस, द रिलेशन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू √2। आई होप इट्स क्लियर। सेक मिल गया। अभी कॉस चाहिए आपको बिकॉज ऊपर कॉस है एंड सेकंड कॉस में कोई रिलेशन है। यस, कॉस थीटा इज
1 upon sec theta and therefore the value of cos theta is 1 upon root 2. So cos मिल गया, sec मिल गया और वो चाहिए था. अभी हमें sin एंड cosec को फाइंड करते हैं. क्या sin मिल सकता है? क्या cos से sin मिल सकता है? यस, आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. उसके थ्रू आप इजीली फाइंड कर सकते हो. या उसके अलावा क्या आपके पास और कोई रिलेशन है जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो साइन थीटा? एंड द आंसर इज यस. आपके पास एक फॉर्मूला है, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. जहां आपके पास टेन थीटा का वैल्यू है, आपके पास कॉस का वैल्यू, और आप इजीली साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. सो बोर्ड्स में क्वेश्चन को अच्छे से देखना. अगर आपको बोलेंगे यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करो. सो अगर आपको कॉस दिया है और अगर साइन फाइंड करना है, सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. बट यहां पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है. सो आई कैन यूज द रिलेशन tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. एंड फाइनली साइन थीटा फाइंड करना है. सो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. रिलेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 अपॉन रूट 2 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1 अपॉन रूट 2. आई होप इट्स क्लियर. कोसेक फाइंड करना है लास्ट. एंड यस, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा. सो cosec theta is 1 upon sin theta, so 1 divided by 1 upon root 2. so 1 divided by 1 upon root 2 प्रीवियस हमने किया था. 1 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, नेक्स्ट टाइम इनवर्स हो जाएगा. so 1 into root 2 is root 2 और 1 नहीं लिखेंगे चलेगा. so the value of cosec theta is root 2. I hope it's clear. अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है. so सबसे पहले sin theta प्लस cos theta का वैल्यू फाइंड करते हैं. सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालते. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1 अपॉन रूट 2 एंड कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज आल्सो 1 अपॉन रूट 2. फर्दर सॉल्व करते. आप बोलोगे सर बटरफ्लाई अप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. बटरफ्लाई नहीं, एलसीएम या बटरफ्लाई कब लिया जाता है? व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. But here in this case the denominators are same, root 2. So if the denominators are same, उसको one time लिखेंगे हम. So numerator 1 plus 1, that is 2 upon root 2. Now in previous standard 9th standard में chapter number 2 real numbers में topic surds के अंदर हमने सीखा है the denominator should never be in root. अगर रूट में है तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे. सो रैशनलाइज करते हैं इसको. सो दिस विल बी 2 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2. डिनोमिनेटर में जो रूट वाला टर्म है वो हटाना है. सो उसी टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो दिस विल बिकम 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज 2. सो गेट रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर आवर वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज रूट 2. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. आई होप इट्स क्लियर. थोड़ा लेंदी है. नेक्स्ट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. सो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा? सेक थीटा इज रूट 2 and what is the value of cosec theta is also root 2. root 2 plus root 2, root 2 plus root 2, 2 root 2. And this is my equation number 2. Now let us substitute the values of sin theta plus cos theta and sec theta plus cosec theta in our given find जो हमें find करना है उसमें. So sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta equal to sin theta plus cos theta root 2 था and sec theta plus cosec theta था 2 root 2. root 2 gets cancelled and our final answer is sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta equal to 1 upon 2. This is our final answer.
सो आई होप इट्स क्लियर. सो प्रैक्टिस सेट 6.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने किए. जो इनिशियल फर्स्ट 3 सम्स थे वो काफी सिंपल थे. नेक्स्ट 2 सम्स अ बिट डिफिकल्ट थे. सो बेस्ड ऑन फर्स्ट 3 सम्स हमने उसको भी सॉल्व कर दिया. चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप सारे फॉर्मूलाज को याद कर लोगे तो बहुत ही इजी होगा. तो वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से देख लेना, देन ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम बाय योरसेल्फ. ओके, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अवर नेक्स्ट सम्स. थैंक यू.